Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. We are all here again to help you in your preparations for either for the school examinations as well as the Olympiad level education. So it would be very much beneficial for you all to study from these video lectures. And these video lectures are for free for everyone. All right, and so that you can benefit from it in both the examinations, and that's what we are doing it because we want to take you from the basic level to the higher one, so that we can prepare you for both the examinations, the school examinations as well as the Olympiad level education, right? So that is very much beneficial to watch these videos, and obviously you should spread that out to all ताकि आपके सारे फ्रेंड्स भी इन वीडियो लेक्चर से पढ़ सके. ऑलराइट, एंड इसी सीरीज में हम लोग अपना चैप्टर 3 कर रहे हैं, राइट, एंड दैट इज मोशन एंड टाइम. Alright, and if you want any DPP or study material, you can definitely access them from the Telegram app. Alright, जिसमें जो हमारा चैनल है उसका कोड है TTB07. तो आपको क्या करना होगा, आपको टेलीग्राम ऐप पर जाना होगा, वहाँ पर लिखना होगा TTB07, ठीक है. फिर आपको जो चैनल मिलेगा उसको ज्वाइन करेंगे एंड देन यू विल बी हैविंग द DPPs एंड स्टडी मटेरियल. So that is very much beneficial. If you want it, you can definitely collect it from there. And you all know that this is a team which will be helping you in every aspect, in every examination, right? So you should definitely go for it. You should study hard with us. All right, and we are preparing very much important info for you all, so that you can benefit it in every manner. All right, and that's what our aim is to, right? We are not leaving any child behind. All right, so the thing we have prepared for you all is that we make some packages, all right, for those students who are feeling them directionless, or you can say who are not guided properly. So you can definitely get the guidance from us, and that's what we have done for you all. To access that the DPPs or the thing or the packages, you have to go on this website www.talkingtextbooks.in. over there you will be getting the two type of packages. The one is the whole package, right, the whole thing, like the whole structured process. All right, and in that you will be getting the study material, all right, and then you will be getting the homework submission feature where you will be submitting the homework. And the third thing, you will be getting the bi-weekly quizzes. You will be getting tested twice a week, and that's it what is gonna be for you. And the third thing, you will be getting periodic test papers. Now periodic test papers क्यों important है, because you should have that much of confidence कि आप फाइनल एग्जामिनेशन को फेस कर सके, राइट. तो इसी के लिए हमने पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स को इंक्लूड करा है, ताकि आपको फाइनल एग्जाम के पूरे पैटर्न से आपको बिल्कुल फेमिलियर करवा दिया जाए, राइट. दैट्स व्हाट वी हैव प्लान्ड फॉर यू ऑल, राइट. एंड यू विल बी गेटिंग द रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस. सो दीज आर द फीचर्स विच आर इंक्लूडेड इन द होल पैकेज. सो इफ यू थिंक दैट you are not guided properly, or you do not have any guidance or map out to your success, then you can definitely join that. And if you think that you have studied enough but you want to test yourself where you stand in the whole country, you can definitely join the test series. All right, in this test series you will be getting the periodic test papers, you will be getting recorded and live classes and bi-weekly quizzes, right. So these are the things you will be getting in both the packages. Now if you want 30% discount on both the packages, you can definitely access them from this code. All right, if you write this code CY Life, if you write this code, then you will be getting 30% discount on any of the package you buy from talkingtextbooks.in. all right, and even if you have any query regarding the possibilities, like what are the packages, or any query regarding if you don't able to understand anything, you can call us on this number 919549041111. all right, you can definitely call us on this number and all your queries will be resolved. And that's what we have this aim for you, all right, so that you can get clear guidance about the goals you have set for yourself. all right, and now let's start study. So prepare yourself, all right, take out your copies and books and just start yourself and promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on the daily basis. Now revision आपको बहुत ज़्यादा करना है, right. आपको हमेशा क्या करना है, एटलीस्ट कम से कम 15 मिनट से डे रिवाइज करना है एंड डेली रिवाइज करना है. बिकॉज आपको पता है कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी चीज़ होती है. अगर आप रोज़ाना एक ही काम करोगे ना, आप उसमें बहुत ही अच्छे हो जाओगे, राइट. इसी वजह से आपको डेली 15 मिनट्स अ डे आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. और आज हम लोग पहले तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे,
ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में स्टडी करेंगे एंड देन वील बी वाचिंग द स्प्रिंग बैलेंस की क्या होता है, कैसे हम मेजर कर सकते हैं या और क्या मेजर करता है स्प्रिंग बैलेंस, ये सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट लेट्स ट्राई आउट द क्वेश्चन। So the question is before you all, right? You can definitely see this question and try it out for yourself. ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को करो एंड बहुत इजी है, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है और वेलोसिटी का फॉर्मूला तो आप सबको पता ही है, तो आप बिल्कुल इसको कर सकते हो। एंड चलो देखते हैं, मेरे साथ साथ भी करते चलो, मैं भी आपके साथ करती चलती हूँ। ठीक है, इसमें बोला गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बाईसाइकिल इफ इट एक्सेलरेट्स एट अ रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम रेस्ट फॉर 2 सेकेंड। ये तो बहुत अजीब चीज़ है, राइट? मैंने आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको सब कुछ बता चुका है। ठीक है, नाउ इट्स योर टर्न टू डू दिस। चलो, है ना? और मैं आपको बीच बीच में जो है थोड़ा सा हिंट देती चलूँगी। हम अभी यहाँ पे जो है सोल्यूशन देखेंगे। सो लेट्स राइट ऑल द गिवन थिंग्स, जो भी गिवन है उन सबको लिख लेते पहले तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बोला गया है एक्सेलरेशन का वैल्यू दे दिया गया है। ठीक है, सो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू हमें दिया है वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और हमको क्या दिया है, टाइम दिया है। और जो टाइम हमको दिया है वो है t और हमको दिया है 2 सेकेंड। और राइट, और क्या हमको दिया है, और कुछ इन्फॉर्मेशन हमको दिया हुआ है क्या? देखो यहाँ ध्यान से, यस बिल्कुल दिया है। अगर आप नहीं पहचान पाए हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है रेस्ट। क्या दिया हुआ है? रेस्ट। मतलब कि जो बॉडी है, ये जो भी बाईसाइकिल है, ठीक है, वो पहले रेस्ट पे थी एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो मतलब पहले तो इसको 0 वेलोसिटी था, तो लेट इसका जो अब इनिशियल वेलोसिटी हो गया है वो 0 हो गया है। नाउ इट इज़ गेटिंग इंक्रीजिंग फ्रॉम द 0 वैल्यू, राइट? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल जो वेलोसिटी है जिसे हम u बोलते हैं, स्मॉल u बोलते हैं, वो है 0। ठीक है, वो है 0। तो आपको 3 इन्फॉर्मेशंस गिवन है यहाँ पे, आपको 4th इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। और राइट, और मेरे को मतलब यू कैन से दैट कि आप इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, क्योंकि मैंने आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सिखाया था। वो क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो व्हाट यू हैव टू डू इज टू राइट द चेंज इन वेलोसिटी, ऑलराइट, एंड देन यू हैव टू डिवाइड इट बाय टाइम। आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू पता है एंड देन यू कैन फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, राइट? सो दिस इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू कैलकुलेट। नाउ लेट्स राइट द फॉर्मूला। पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। सो द एक्सेलरेशन इज व्हाट, इट इज चेंज इन वेलोसिटी Alright, it is change in velocity divided by time taken. Alright, और change in velocity क्या होता है, final velocity minus initial velocity. So we will be writing v minus u divided by t equals to a. Now let's put all the values, जितना भी values हमको given है वो सब put कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो a का value हमको given है वो है 4, v का value we have to calculate। ठीक है, ये जो हमको पूछा जा रहा है ना वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है दिस इज v। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। ठीक है, उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितना है, 0, सो वी आर राइटिंग 0 हियर। देन टाइम टेकन कितना है, 2 सेकेंड, सो वी आर राइटिंग हियर t। मैंने तो t लिख दिया, पर यहाँ पर जो है हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स कैलकुलेट। पहले तो इस 2 को हम लोग राइट हैंड साइड लेकर जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाते हैं, नॉट द राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाते हैं और फिर क्या हो जाएगा, 4 के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो वी विल बी डूइंग व्हाट, 4 into 2। ठीक है, और v माइनस 0 तो v ही होता है, बिकॉज किसी भी नंबर में से अगर आप 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिंपली आपको 0 v ही मिलेगा, मतलब वो नंबर ही मिलेगा, राइट? सो यू विल बी गेटिंग v ओनली। ठीक है, तो 4 2 का कितना होता है, 8। So 8 मीटर पर सेकेंड इज दी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो आपको जो है फाइनल वेलोसिटी कितना मिल गया है, 8 मीटर पर सेकेंड मिल गया है, बिकॉज यू हैव कैलकुलेटेड इट लाइक दिस। ठीक है, अब आपका काम क्या है, फटाफट से नोट करो एंड नोट आउट ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स की। देखो
जब कभी भी फ्रॉम रेस्ट से आता है, कोई भी सिचुएशन, कोई भी बॉडी फ्रॉम रेस्ट बोला जाता है उसके बारे में अगर कि वो मूव करने लगी है फ्रॉम रेस्ट, देन यू शुड अंडरस्टैंड कि जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है, स्टार्टिंग वेलोसिटी ज़ीरो होती है। दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये चीज़ आप फटाफट से आप नोट करो। ऑलराइट, इस चीज़ को भी नोट करेंगे सभी बच्चे, दैट व्हेनेवर यू आस्क फ्रॉम रेस्ट यू शुड राइट दैट ज़ीरो। ऑलराइट, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो हमने वेलोसिटी कैलकुलेट किया था। देखते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे। हम लोग यहाँ करने वाले हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हम लोग कैलकुलेट करेंगे एंड हमको पूछा जा रहा है क्या, व्हाट इज अविनाश's एवरेज स्पीड ओवर हिज एंटायर ट्रिप when it takes him 2 minutes to walk 100 meters north and another 1 minute to walk 80 meters south। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एवरेज स्पीड निकालनी है और मैंने आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली रिवाइज जिसने किया होगा वो ज़रूर करेगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब इस फटाफट से इस फॉर्मूले को यूज़ करो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी फास्ट। ठीक है, बहुत ही जल्दी आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी जो है इंफॉर्मेशन लिख देती हूँ कि तुमको क्या क्या नेसेसरी होगा। ठीक है, तो इसने क्या बोला, 100 मीटर्स जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो वो उसने क्या किया है, पहले तो 100 मीटर्स कवर अप किया है। ठीक है, 80 मीटर्स भी उसने कवर अप किया है। ऑलराइट, एंड टाइम जो उसने कवर अप किया है वो कितना, मतलब जो टाइम उसने लिया है, ठीक है, अविनाश ने जो टाइम लिया है वो कितना लिया है, 2 मिनट्स लिया है पहले तो 100 मीटर्स को कवर अप करने के लिए 2 मिनट्स। ऑलराइट, एंड उसने 80 मीटर्स को कवर अप करने के लिए लिया है 1 मिनट। ठीक है, अब आपका काम क्या है, आपको फटाफट से एवरेज स्पीड निकालनी है। सो यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालेंगे कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिंपली ऐड करना होगा, और ऐड सभी करना सभी बच्चों को आता है, ऐसा मैं बिल्कुल मानती हूँ। ठीक है, मैं ऐसा मान के चलूँगी कि ऐड सभी बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख देती हूँ, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम टेकन। ऑलराइट, तो अब मैंने आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी बता दिया। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, डिस्टेंस ट्रैवल किया है 100 मीटर और फिर डिस्टेंस ट्रेवल किया है 80 मीटर्स। ठीक है, क्योंकि अब देखो हम लोग डायरेक्शंस की बात नहीं कर रहे, नॉर्थ में किया हो साउथ में किया हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड। अगर मैं यहाँ पर आपको वेलोसिटी पूछती तब तो दिक्कत हो जाती, बिकॉज उस वक्त हम लोग स्पीड का के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी देख रहे होते है ना, तो वहाँ पर हम लोग को डायरेक्शन को डील करने का प्रॉब्लम आ सकता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्पीड, जब हम स्पीड के बारे में बात करें तो देयर इज नो एनी, यू कैन से नो एनी कंट्रीब्यूशन ऑफ द डायरेक्शन। ऑलराइट, सो हम डायरेक्शन को बिल्कुल भी जो है इग्नोर मार देंगे। ठीक है, और उसका हम कुछ भी नहीं करेंगे, भले ही वो नॉर्थ में गया हो अविनाश, भले ही साउथ में गया हो, कोई मतलब नहीं है। वी जस्ट टॉक अबाउट द एवरेज स्पीड। ऑलराइट, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना आ गया है, 100 प्लस 80। ठीक है, और जो टोटल टाइम आ गया है वो कितना आया है, 2 मिनट प्लस 1 मिनट। ऑलराइट, 2 मिनट प्लस 1 मिनट। ठीक है, नाउ लेट्स कैलकुलेट इट। सिंपल कैलकुलेट करना है, दैट इज 180 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर मिनट। ठीक है, इसको हम कैंसिल करेंगे, इट वुड बी 60, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपली 60 मीटर पर मिनट। ऑलरेडी अब यहाँ पर आप देखो कि क्या ये मीटर पर मिनट स्पीड का यूनिट है,
आपको ऐसा लगता है कि ये मीटर पर मिनट स्पीड का यूनिट है? ऑब्वियसली है। देखो, जब कभी भी जो ये स्पीड का यूनिट होता है ना, इट कैन बी एनीथिंग। हम यहाँ पे SI की बात नहीं कर रहे हैं, बट इट कैन बी एनीथिंग, राइट? अदर यूनिट्स भी तो होती हैं, तो इट कैन बी लाइक मीटर पर आवर हो सकता था, ठीक है, मीटर पर मिनट हो सकता था, मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है, ये तो ऐसा है ही है, राइट? अब दूसरे जो यूनिट्स हैं, जैसे किलोमीटर अगर डिस्टेंस हम लेते हैं तो किलोमीटर पर आवर हो सकता है, किलोमीटर पर मिनट हो सकता है, किलोमीटर पर सेकेंड भी हो सकता है। सो इट डिपेंड्स, ठीक है? आपको मेनली इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होना चाहिए, ठीक है? ऊपर क्या आना चाहिए? यूनिट आना चाहिए डिस्टेंस का, और डिवीजन में क्या आना चाहिए? यूनिट आना चाहिए टाइम का, ठीक है? बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ऑलराइट? उसके अलावा आपको कुछ भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड का ही यूनिट्स हैं, आप डेफिनेटली बता सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शंस में जैसे अगर यूनिट स्पेसिफाई होता, चलो ठीक है, हमने मान लिया कि हमारा आंसर 60 मीटर पर मिनट आ गया है, ठीक है, बिकॉज ठीक है 60 मीटर पर मिनट हमको आ गया है। नाउ द थिंग इज कि मान लो अगर ऑप्शंस के अंदर यू कैन गेट कि मीटर पर सेकेंड में आंसर बताओ, ठीक है, अगर तब ऐसा होता तो देयर वुड बी 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अगर तब ऐसा होता जब हम इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे होते तो ये हमें मिल जाता 1 मीटर पर सेकेंड का स्पीड, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको समझदारी दिखानी है, ठीक है, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जैसा हमारे स्कूल एग्जामिनेशंस में आते हैं, तो वी कैन गो लाइक दिस, ठीक है? लेकिन जब अगर ऑप्शंस में होता देन यू शुड डेफिनेटली कन्वर्ट द यूनिट्स जो कि ऑप्शंस में गिवन होती है और आप उसे मैच करके अपना आंसर लेके आते, राइट? तो इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन से डील करने वाले हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, ठीक है? तो अब आप इसे फटाफट से नोट करो, एंड मैं चाहती हूँ कि आप सभी इसको मीटर पर सेकेंड में भी कन्वर्ट करो, ठीक है? सबको कन्वर्जन आना चाहिए। सो नाउ लेट्स कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हम छोटा सा जो है करेंगे, ठीक है, और मैं कलर भी चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, हम लोग ग्रीन से कर लेते हैं, है ना? अब देखेंगे 60 मीटर पर मिनट आ चुका है हमारा स्पीड, ठीक है, जो कि हमारा फाइनल आंसर है ऑलरेडी। लेकिन अगर मुझे इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो मेरे को पता है कि ऊपर 60 मीटर है, अब मीटर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, हमको इसको कन्वर्ट करना है किस में? मीटर पर सेकेंड में। तो मुझे सिर्फ इस मिनट को ही सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मुझे ये बात ऑलरेडी पता है दैट 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, तो हम लोग डायरेक्टली जो है लिख देंगे दैट 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। और अब क्या करेंगे? 60 मीटर डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड, बिकॉज 1 मिनट की जगह मैंने 60 सेकेंड्स लिख दिए हैं, कैंसिल आउट कर दिया है, नाउ आई गेट 1 मीटर पर सेकेंड। तो अगर इसका ऑप्शन होता, ठीक है, अगर आप इसका ऑप्शन होता तो आप कैसे कह सकते थे? हो सकता है ऑप्शन में आता 1 मीटर पर सेकेंड और आप सब कंफ्यूज हो जाते कि मेरा आंसर तो 60 आया है और ऑप्शन में 1 दिया हुआ है। आपको यूनिट्स का इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, फिजिक्स में यूनिट्स बहुत ज़रूरी है, नंबर भी करते हैं यूनिट्स का, ऑलराइट? और जनरली जो क्वेश्चन है ऑप्शंस में डिफर कर जाता है, थोड़ा सा भी अगर चेंज हो जाएगा यूनिट में आप लोग डर जाएंगे अपने आंसर को लेकर, एंड जो कि अच्छी बात नहीं है, राइट? तो आपको क्या करना है? यूनिट्स का ध्यान रखना है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है, यूनिट कन्वर्जन करना है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ठीक है? तो आप इसे फटाफट से नोट करो, ऑलराइट? उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? जब तक मैं थोड़ा पानी भी पी लेती हूँ। ठीक है, तो आप सभी ने नोट कर लिया, सभी को पता चल गया ना दैट दे हैव टू अंडरस्टैंड द यूनिट थिंग, ठीक है? यूनिट पे आपको फोकस करना है एंड दैट इज वेरी मच गुड एंड नेसेसरी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो आपको पूछा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि अपने आंख नाक कान खोल कर ये क्वेश्चन पढ़े, ठीक है? अब आप देखेंगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज माई एवरेज वेलोसिटी when it takes me 2 minutes to ride my bicycle all the way round a circular track with a radius of 65 meters. Now tell me what is it means.
ये क्या बोल रहा है कि मेरी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, इमेजिन कि मैं ऐसा कर रही हूँ, ठीक है, इमेजिन करो कि मैं बाइसाइकिल राइड कर रही हूँ, ऑलराइट, और मुझे 2 मिनट लग रहे हैं पूरे सर्कुलर ट्रैक को जो है कवर अप करने के लिए, 2 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको देखना है, और वो जो सर्कुलर ट्रैक है ना वो 65 मीटर्स के डायमीटर का है। लेट्स ड्रॉ इट आउट, ठीक है। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, और मैं अपनी इंक वापस से जो है रेड ले लेती हूँ, ठीक है। चलो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक सर्कुलर ट्रैक ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। दिस इज दी सर्कुलर ट्रैक, ऑलराइट। मैंने बहुत ही बढ़िया सर्कल बनाया है ना, देखो मेरी ड्राइंग कितनी इंप्रूव हो रही है। अब चलो ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग रेडियस देख रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे सेंटर से लेके यहाँ से जो भी जो डिस्टेंस होता है ये हमको गिवन है 65 मीटर। 65 मीटर्स जो है हमको गिवन है, और ये है रेडियस सर्कुलर पाथ का, ऑलराइट। अब देखते हैं क्या किया है हमने, 2 मिनट्स लिए हैं, ऑलराइट। तो हमने बोला कि 1 कंप्लीट राउंड के लिए, ऑलराइट, 1 कंप्लीट राउंड के लिए आई टेक 2 मिनट्स, ठीक है। मैंने 2 मिनट्स जो है लिए हैं। अगर मैं इस पूरे सर्कल को एक बार राउंड करना चाहती हूँ विद द बाइसाइकिल, राइट। अब आप मुझे बताइए देन व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं वापस से आपको बता देती हूँ, ठीक है। वापस से मैं आपको बता देती हूँ दैट यू शुड open your eyes, nose and ears and then read the question, alright। तो फाइनली भाई मैं जो है ये सीक्रेट आपको बता देती हूँ, ऑलराइट, और ट्रिक भी बता देती हूँ। क्या ट्रिकी पार्ट था ये आपको बता देती हूँ। सो द ट्रिकी पार्ट इज द कंप्लीट सर्कल, इट इज द ट्रिकी पार्ट, यस इट इज द ट्रिकी पार्ट। देखो कैसे कैसे कैसे, ऑल द वे राउंड अ सर्कुलर ट्रैक, ऑल द वे राउंड अ सर्कल ट्रैक मतलब होल 1 कंप्लीट सर्कल, ऑलराइट। एंड जब कभी भी ऐसा पॉसिबल होता है, जब कभी भी हम पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं, तो टेल मी वन थिंग कि हमने जहां से, लेट्स से मैंने यहां से स्टार्ट किया, ऑलराइट, और मैं पूरा सर्कुलर जो है घूमकर वापस यहीं पर आ गई। सो व्हाट इज माय इनिशियल पोजीशन, यही है। व्हाट इज माय फाइनल पोजीशन, यही है। जब मेरा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कोलाइड कर गया, इसका मतलब सेम हो गया है, तो क्या कुछ डिस्प्लेसमेंट वहां है, क्या कुछ भी डिस्प्लेसमेंट वहां है जब मेरा जो इनिशियल पोजीशन है वो कोलाइड कर गया है विद द फाइनल पोजीशन। सो इज देयर एनी टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल भी नहीं है, ऑलराइट, बिकॉज इनिशियल पोजीशन मतलब मेरा जो स्टार्टिंग पोजीशन है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन is same as the final position, ठीक है। सो जब मैंने आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था ना, तो मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको बताई थी कि जब कभी भी हम स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन को सेम बना देते हैं, या फिर हमने जहां से जर्नी स्टार्ट किया था वहीं वापस पहुंच जाते हैं, तो फिर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, इट वुड बी 0। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0, तो जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है, दैट्स व्हाई इट इज 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी थी वो 0 थी। सो रिमेंबर दिस थिंग, आपको ये नोट करना होगा कि अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट और आपका फाइनल पॉइंट सेम ही है, तो फिर वहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन पोजीशन। आपने जहाँ स्टार्ट किया था, यू फिनिश एट दैट पोजीशन, सो नो चेंज इन पोजीशन, दैट्स व्हाई यू कैन से कि वहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है, जो था वो वही था, राइट। दैट्स व्हाई यू कैन से नो डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 0 डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट्स व्हाई यू गेट द 0 वेलोसिटी। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द एवरेज थिंग, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना था ना, सो यू गेट 0, ऑलराइट। और इसको सिंपली देखते ही कर लेना चाहिए था, मतलब क्वेश्चन रीड, इसीलिए मैंने आपको आंकना खोल करने के लिए कहा था, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको पता है आप एग्जाम टाइम में से 1 सेकेंड वेस्ट करोगे इस क्वेश्चन के लिए, ओनली 1 सेकेंड, ठीक है। अब क्योंकि इतना स्मॉल और ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब इतना छोटा सा दिमाग में ट्रिक रखना है, नॉट ऑल यू गेट, तुम्हारा कितना टाइम मतलब सेव हो सकता है। तुम कैलकुलेट करने बैठो भाई कितना मूव किया है, कैसे मूव किया है, उसके चक्कर में तुम अपना कितना टाइम गंवा सकते हो। सो यू मस्ट बी वेरी मच अवेयर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, और जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं उनके बारे में तो अवेयर होना ही होना है, राइट। तो फटाफट से जो है इसको नोट करो,
फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। और हमारा ये क्वेश्चन ये कहता है कि हमको यहाँ निकालना है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो भी एक साइक्लिस्ट का निकालना है जब वो क्या कर रहा है, सर्कल का 1/4 पार्ट कवर कर रहा है, ठीक है। तो वापस से जो है मैं सर्कल बनाती हूँ, ठीक है, देखते हैं कितना अच्छा सर्कल बनता है मुझसे। ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया बट काफ़ी अच्छा है, ठीक है, इट इज़ काफ़ी गुड, है ना। और चलो अब देखते हैं, इसका जो रेडियस है वो है 70 मीटर। सो लेट्स डू दैट। 70 मीटर जो है हमने इसका रेडियस लिख दिया है, ऑलराइट। अब बोला क्या जा रहा है, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ साइक्लिस्ट व्हेन ही कवर्स 1/4 ऑफ अ सर्कल, ठीक है। मतलब वो एक मतलब यू कैन से 1/4, ठीक है, वो ट्रैवल कर रहा है। तो लेट्स से अगर वो इस पोजीशन से स्टार्ट करता है, लेट्स से वो यहाँ ए से स्टार्ट करता है, तो 1/4 कितना हुआ, 1/4 हुआ दैट इट विल रीच एट दिस पॉइंट, ठीक है, बस इतना ही पहुंचेगा, वो 1/4 ही ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर वो ए से जो है ट्रैवल करता 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 बी तक जाता है, तो वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस एज वेल एज द डिस्प्लेसमेंट। नाउ स्टार्ट डूइंग इट, ठीक है, सभी बच्चे करना शुरू करेंगे। ये भी जो है हमको मिल जाएगा 70 मीटर, ऑलराइट। अब यहाँ पे क्या करना है आपको यहाँ पे सारी पीछे की जितनी भी नॉलेज है ना वो सब अप्लाई करनी है, राइट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन में यू विल बी लिटिल बिट मेहनत तो लगेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो डिस्टेंस बताते हैं, ठीक है। डिस्टेंस जो है इस बच्चे ने कितना कवर किया है, साइक्लिस्ट ने कितना कवर किया है, ठीक है। देखेंगे डिस्टेंस का मतलब है उसने क्या किया है, 1/4 ऑफ द सर्कल ट्रैवल किया है, 1/4 ऑफ द सर्कल, दैट मीन्स सर्कल का इस पूरे, मैंने आपको लेंथ बताया था ना कि पूरा सर्कल को जब हम जो है अगर ट्रैवल करते हैं तो 1 राउंड के अंदर वो कितना करता है, 1 राउंड के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है लेकिन भूल जाते हो तुम लोग, 1 राउंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं वो 2πr, ऑलराइट, 2πr करते हैं। और मैंने पाई का वैल्यू आपको बताया है 22/7, ठीक है। देखेंगे लेकिन अब ये 1 राउंड की बात कर रहा है तो होल राउंड की बात कर रहा है और हमको क्या करना है, हमको सिर्फ 1/4 निकालना है। सो वी विल डिवाइड इट बाय द 4, ठीक है। अब जैसे 1 राउंड की बात कर रहे हैं तो अगर मैं 1/4 ऑफ अ राउंड की बात करूं, 1/4 ऑफ अ राउंड की बात करूं तो मतलब मैं इस होल सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूं, ठीक है। So what I am doing is 2πr divided by 4, alright. So this is what the cyclist traveled, ठीक है। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 2πr divided by 4. Now let's calculate 2 into 22/7 into 70 divided by 4, alright। मैंने क्या किया है, सिर्फ पाई का वैल्यू रख दिया है, पाई का वैल्यू कितना है 22/7 एंड हमने रेडियस का वैल्यू रख दिया है 70, दैट्स इट, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। अब क्या देखो फटाफट कैंसिल आउट कर देते हैं, 7 से 70 कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 2 टाइम्स, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स। सो व्हाट यू विल बी गेटिंग 110 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साइक्लिस्ट, ठीक है। तो आपको सिंपली कैलकुलेशन करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। समझ में आया सभी को, 2 into 22/7 into 70, क्या किया, 7 से 70 कैंसिल किया पहले तो 10 टाइम्स हो गया, ठीक है, और उसके बाद क्या किया, 2 को 4 से कैंसिल किया, सो इट विल बिकम 2। अब इस 2 को इस 22 को कैंसिल किया, सो इट बिकम 11 एंड 11 into 10 विल गिव यू 110 मीटर, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द डिस्टेंस। नाउ द हार्ड थिंग वो है डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज यहाँ पे आपको एक और चीज जो है यूज करनी पड़ेगी जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये आपको जो करना पड़ेगा, देखेंगे क्यों करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा।
पर्पल लेते हैं, ठीक है। अब देखेंगे जो ए पोजीशन है, जो स्टार्टिंग पोजीशन है, यू कैन से हियर कि ये जो ए पोजीशन है स्टार्टिंग पोजीशन है, ठीक है, दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है। बी है, ये कौन सा पोजीशन है, फाइनल पोजीशन, सो बी इज फाइनल पोजीशन, ए इज स्टार्टिंग पोजीशन, राइट। और क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होगा ये, ठीक है। ये सर्कुलर आर्क नहीं होगा, ये सर्कुलर आर्क तो डिस्टेंस है। व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो रहा होता है डिस्प्लेसमेंट के टाइम में, डिस्प्लेसमेंट के टाइम में यू नीड टू फाइंड आउट द पोजीशंस, स्टार्टिंग पोजीशन एंड एंडिंग पोजीशन। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पोजीशन है ए बिकॉज यहाँ से स्टार्ट किया गया है, एंडिंग पोजीशन है बी बिकॉज यहाँ पे फिनिश किया गया है, ऑलराइट। एंड यू कैन सी इन दोनों के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगी दैट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो कि इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करती है। और जब हमने उसको देखा तो इट बिकम्स अ ट्राइंगल, ठीक है। और ये कौन सा ट्राइंगल मिला, 90 डिग्री वाला ट्राइंगल, दैट मीन हमको क्या मिला, राइट एंगल्ड ट्राइंगल मिल गया, ऑलराइट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं, ए बी डिस्टेंस को कैलकुलेट करने वाले हैं। और ये चीज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, ए बी का स्क्वायर मैंने आपको याद करवाया था, ठीक है, लेट इट नेम्ड एज ओ। तो देखेंगे ये जो है ये है ए बी, तो इसका स्क्वायर विल गिव यू ए बी का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। सो व्हाट यू नीड टू डू इज टू ए ओ का स्क्वायर आप करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, ओ बी का स्क्वायर करेंगे, ऑलराइट, एंड दैट विल गिव यू ए बी, ठीक है, उसका स्क्वायर आपको मिल जाएगा। और यही पाइथागोरस थ्योरम कहती है, ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं ना ये, ऑलराइट। तो देखेंगे ए बी को अभी हम स्क्वायर ही रहने देते हैं, ए ओ का वैल्यू कितना है वहां देखो 70, तो मैंने क्या किया 70 का स्क्वायर किया। फिर ओ बी का वैल्यू देखो कितना है 70, यहाँ पर भी मैंने क्या किया 70 का स्क्वायर किया। अब मुझे क्या मिलेगा, ए बी का जो स्क्वायर है वो मुझे क्या मिलेगा 2 इंटू 70 का स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू 70 का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स ऑफ 70 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, अंडर रूट यानी ये जो स्क्वायर है ना इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा लेकिन 2 के पास रह जाएगा, ठीक है, तो √2 बन जाएगा वो, ठीक है, √2 इंटू 70 और यू कैन से 70 √2, ठीक है, ये जो है बन जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने √2 क्यों लिखा, बिकॉज देखो जब कभी भी ये जो पावर होती है स्क्वायर की पावर, जब ये अपोजिट साइड में जाती है तो ये क्या बना देती है, ये रूट बना देती है, ठीक है, ये रूट बना देती है। और इसीलिए हमने क्या किया, ए बी का से ऊपर हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर था पर यहाँ पे नहीं था, इसीलिए यहाँ पे ये √2 बन गया, ठीक है। तो दैट्स व्हाट वी हैव डन और दैट्स व्हाई वी हैव रिट 70 √2। तो इसका मतलब कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो ए बी डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज व्हाट 70 √2 मीटर और दिस इज व्हाट आवर डिस्प्लेसमेंट। सो वी कैन राइट हियर सिंपली, अब तो सिंपली वैल्यू लिखना है, राइट। तो अब आप सिंपली वैल्यू लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट का। So displacement would be how much 70 √2 मीटर, ठीक है, तो 70 √2 मीटर्स आ गए। अब आप फटाफट से इसको नोट कर लो, ठीक है, ताकि हम फिर थोड़े बहुत क्वेश्चंस और करेंगे, 3 क्वेश्चंस मेनली और करेंगे एंड देन वी विल बी स्टडी अबाउट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, चलो अब मैं फटाफट से क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम करेंगे, ये देखो छोटे छोटे 3 क्वेश्चन है, आप देखो तुमको पता चल जाएगा बहुत जल्दी, तुम सब जल्दी जल्दी कर लोगे। देखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज एक्चुअल पाथ कवर्ड,
largest path covered, smallest path covered और none of these. Now tell me what it is. Distance तो होता है वो जो एक्चुअली में हम लोग पाथ कवर करते हैं उसका लेंथ, दैट इज द डिस्टेंस, राइट. तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्चुअल पाथ कवर्ड इज द डिस्टेंस. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी कौन होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसके पास डायरेक्शन भी होता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या स्पीड के पास डायरेक्शन होता है? नो. वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है? यस. डिस्टेंस के पास डायरेक्शन होता है? नो. टाइम के पास डायरेक्शन होता है? नो. तो हमारा ओनली आंसर कौन करेक्ट हो गया है? वेलोसिटी. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ स्पीड. मतलब इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि स्पीड की यूनिट को रिप्रेजेंट नहीं करता. ठीक है, तो मतलब अब देखो आर किसका है? टाइम और डिस्टेंस. तो मतलब ये तो हो गया टाइम अपॉन डिस्टेंस, तो ये नहीं करता. मीटर अपॉन मिनट, तो ये क्या है? डिस्टेंस. मिनट क्या है? टाइम, तो ठीक है ये करता है. सेंटीमीटर डिस्टेंस, सेकेंड टाइम, तो ठीक है ये करता है. किलोमीटर डिस्टेंस, आर टाइम, तो ठीक है ये भी करता है. तो मतलब एक ही यूनिट हुआ कौन? जो है आर अपॉन किलोमीटर, और यही नहीं करता है. तो हमारा ऑप्शन ए वुड बी दी जो कि इसको रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, मतलब डज नॉट रिप्रेजेंट में आ रहा है ना, तो हमारा ए ऑप्शन वुड बी द गुड वन और वही इसका आंसर होगा. ठीक है, बाकी सारे करेक्ट हैं, बाकी सारे के सारे सचमुच में यूनिट हैं. किसके? स्पीड के यूनिट हैं. ठीक है, तो दैट इज द थिंग. चलो अब हम क्या करते हैं? अब हम फटाफट से जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है, ध्यान से देखो. इस ये है न्यूटन. ठीक है, और ये न्यूटन है और ये क्या कर रहे हैं? इनके ऊपर जो है एप्पल गिरता है एंड तभी इन्हें जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आइडिया आता है दैट दिस थिंग्स अकर्स और हैपन्स और इज एग्जिस्ट, राइट. सो वो सब चीज़ें जो है इसमें दिखा रखी है. नाउ टेल मी वन थिंग दैट आई वांट टू नो, राइट, कि आप मुझे ये बताएंगे कि क्या जो भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं वो क्या वो नीचे आती है? डेफिनेट सी बात है वो नीचे आती है, राइट. तो वो नीचे क्यों आती है? तो क्या रीज़न है कि वो नीचे आती है? ठीक है, सो व्हाट कैन बी द रीज़न? रीज़न इज़ कि हमारी जो धरती माता है, ठीक है, हमारी जो अर्थ है, वो क्या करती है? सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है. ठीक है, देखेंगे द अर्थ अट्रैक्ट ऑल द बॉडीज टूवर्ड्स इट्स सेंटर. सभी बॉडीज को अपने सेंटर के तरफ अट्रैक्ट करती है और इसी वजह से हम लोग जो हैं हमेशा खड़े रहते हैं, हवा में नहीं झूलते हैं. ठीक है, अगर हम हवा में जो है इस तरह फ्लाई कर रहे होते तब हम मान सकते थे कि जो है ग्रेविटी वर्क नहीं कर रही है, बट बिकॉज अर्थ इज अट्रैक्टिंग अस टूवर्ड्स इट्स सेंटर, दैट्स व्हाई वी आर स्टैंडिंग एंड ऑल द थिंग्स कम्स डाउन टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है. Second thing I want to tell you is that the force exerted by earth on the body is known as the weight of the body or force of gravity. तो हमारी धरती माता हम पर कितना फोर्स लगाती है? that is known as the weight और that is known as the force of gravity. ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें हम बोल सकते हैं. और ये क्या होती है? सिंपली हमारी धरती माता जितना हम पर फोर्स लगाती हैं वही होता है. ठीक है, वही होता है वेट और वही होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अब देखो हमेशा जो है ये हमको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है, तो इसका डायरेक्शन कहाँ हुआ? हमेशा नीचे की तरफ. तो देखेंगे इट एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑलवेज. इसका डायरेक्शन फिक्स है. ठीक है, इस फोर्स का डायरेक्शन फिक्स है और वो हमेशा आपको सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ ही जो है डायरेक्टेड होगा. तो इसका आपको जो डायरेक्शन मिलेगा इट विल ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. ऑलराइट, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? फॉर्मूला, कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो. फॉर्मूला मैंने वेट का आपको बताया हुआ है आई थिंक. ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और वेट में क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज m. ठीक है, इनटू g. तो आपका कितना मास है वो मल्टीप्लाई बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू फिक्स होता है और वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं सो वी गेट व्हाट? द वेट ऑफ द बॉडी. ठीक है, सो वी गेट द वेट ऑफ द बॉडी. जैसे कि हमने इसे लिख दिया है W इक्वल्स टू mg. सो वेट इज m इंटू g. ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. नाउ सी द वैल्यू ऑफ g इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द सरफेस ऑफ द अर्थ. रिमेंबर ये सिर्फ सरफेस ऑफ द अर्थ की बात है.
मून पे जाओगे देन यू विल बी गेटिंग अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ दिस जी, ठीक है। और हो सकता है आप जुपिटर पे चले जाते हैं तो आपको कुछ और वैल्यू मिल जाएगा, आप वीनस पे चल जाओगे तो आपको कुछ और वैल्यू मिलेगा, राइट। तो ये जो जी का वैल्यू होता है ये हमेशा चेंज होते रहता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, ठीक है। एंड दैट्स वाई आपको क्या है कि आपका जो वेट है ना, ये वेट वो अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग हो जाएगा, जस्ट बिकॉज जी का वैल्यू चेंज हो रहा है इसलिए, ठीक है। लेकिन एक चीज कांस्टेंट रहेगी, वो कांस्टेंट क्या रहेगी, मास। आपका मास वुड बी कांस्टेंट एवरीवेयर, चले भले ही आप जो है मून पे चले जाओ, भले ही आप जुपिटर पे चले जाओ, वीनस पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, बट आपका मास वुड बी द सेम, लेकिन वेट वुड बी डिफरेंट, ठीक है। ये चीज आपको जो है रिमेंबर करनी है, ऑलराइट। अब देखेंगे फॉर अ बॉडी मूविंग डाउनवर्ड, जो भी बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, जी इज टेकन एज पॉजिटिव, बिकॉज वो क्या कर रही है, उसको उसी का डायरेक्शन है, तो सेम सेम डायरेक्शन हुआ तो ऐड हो जाता है, ठीक है। फॉर अ बॉडी वाइल मूविंग अपवर्ड, जी इज टेकन नेगेटिव, बिकॉज जब वो ऊपर जा रही होती है बॉडी तो फोर्स तो नीचे लग रहा होता है, तो फोर्स की डायरेक्शन और मोशन की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, तो इट बिहेव्स एज नेगेटिव, ठीक है। तब वो नेगेटिव हो जाता है, इसका वैल्यू नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। एंड इट डिक्रीजेज आवर स्पीड, ठीक है। देखो द वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज सेड टू बी 1 kg वेट विच इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। तो अगर आपको बोला जाए 1 kg वेट कितना हुआ, तो आप बोलेंगे कि धरती माता जितना फोर्स लगाती है 1 kg ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, वही होगा क्या, जो 1 kg वेट होगा, ठीक है। तो ये चीज आप बिल्कुल डेफिनेटली बता सकते हैं, बोल सकते हैं, ऑलराइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी यू कैन से अनदर थिंग। इसी वजह से द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज 1 kg वेट और 9.8 न्यूटन। हम बोल देते हैं कई बार जो सी लेवल होता है ना, दैट इज दी ऑलमोस्ट जीरो लेवल, ठीक है, उसको हम जीरो लेवल कंसीडर करते हैं, किसको, सी लेवल को। सी लेवल के ऊपर अगर हम जाएंगे तो डिस्टेंसेस बढ़ती जाएंगी, सी लेवल के नीचे अगर जाएंगे तो डिस्टेंसेस घटती जाएंगी, ऑलराइट। ऐसा हम लोग देखते हैं। तो सी लेवल पे यू कैन से, सी लेवल पे ऑलवेज जो ग्रेविटी का फोर्स है वो कितना लगेगा किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे, 1 मास के ऑब्जेक्ट पे वो लगेगा कितना, जितना हमने अभी बताया 9.8 न्यूटन और 1 kg वेट, ठीक है। तो वो सी लेवल की बात है, बिल्कुल जीरो लेवल पे, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी द वैल्यू ऑफ द जी विल चेंज, ऑलराइट, आपका वेट चेंज होता जाएगा, ठीक है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्प्रिंग बैलेंस, बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस यूज होता है, ठीक है, हमेशा स्प्रिंग बैलेंस यूज होता है, ठीक है। बीम बैलेंस नहीं होता, स्प्रिंग बैलेंस होता है, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से दिखता है, देख पा रहे हैं आप स्प्रिंग बैलेंस को, कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर एक हुक होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को टांग दिया जाता है, ठीक है, इसके अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है इधर, और जैसे ही इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट टांगा जाता है ना, ये स्प्रिंग खिंच जाती है, ठीक है, स्ट्रेच हो जाती है, एंड दिस मार्क कम्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और तब आपको ये मार्किंग्स दिख रही है 1 2 3 4 वाली, यहाँ पे 100 200 वाली, तो यहाँ से आप मेजर कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि बॉडी का वेट कितना है, ठीक है। देखेंगे स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से यू कैन मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, या फिर यू कैन कैलकुलेट द वेट और यू कैन कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। It consists of a coiled spring which gets stretched when a force is applied to it. तो जैसे ही हमने इसके ऊपर कोई बॉडी को टांगा तो एक फोर्स अप्लाई हुआ होगा, जो अंदर स्प्रिंग है, तो यहाँ वाली जो स्प्रिंग है ना वो स्ट्रेच हो जाती है, एंड दिस मार्क कम्स डाउन, ठीक है। Stretching of the spring is measured by a pointer moving on a graduated scale. So see, this is the scale, ऑलराइट, दिस इज द स्केल, और ये जो पॉइंटर है, रेड कलर का पॉइंटर देख पा रहे हैं, ये जो पॉइंटर है नीचे आएगा, एंड वी रीड दैट एंड वी कैलकुलेट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फोर्स कितना है ये रीडिंग हमको बताती है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको सारे मेजर्स ध्यान रखने हैं, ठीक है, आपको मेजर्स ध्यान रखने हैं कि भाई हुक क्या है, ग्रेजुएटेड स्केल क्या है, पॉइंटर क्या है, ठीक है। वो रिंग जो है ना वो सिर्फ उसको होल्ड करने के लिए है, ठीक है, तो वो तो फिर रिंग को तो आप छोड़ भी सकते हो, ऑलराइट। अब देखते हैं जो जितनी भी चीजें आपने आज सीखी, यू लर्न अबाउट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यू लर्न अबाउट द स्प्रिंग बैलेंस, एंड यू लर्न अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ द क्वेश्चंस, राइट। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो हमारा बाकी का चैप्टर है उसको स्टडी करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड डू योर होमवर्क, ऑलराइट। एंड व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू स्प्रेड इट आउट टू ऑल, ताकि सभी बच्चे यहाँ से पढ़ सके और सभी का जो गोल है, जो उन्होंने सोचा हुआ है वो क्रैक कर सके, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।